Praise the Lord. Praise the Lord. ସେହି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ସେହି ଇସାକର ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ସେହି ଯାକୁବଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେହି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ସେହିଦିନ ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ 7ଟା ବାଣୀ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ପାଷ୍ଟର ଏପୋଲୋସ ପ୍ରୀତିରାଜ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି 7ଟି ବାଣୀ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରାଉଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଅଛି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥିତ ସେହି 7ଟି ବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆଜି ଏହି ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଛି ସେହି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗର ସେହି ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛି। ଏହି 7ଟି ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁ, ତାହା ଆମର ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସଚେତନ କରେ ଏବଂ ଏହି 7ଟି ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣୁ, ଏହା ଆମକୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏହି 7ଟି ବାଣୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି 7ଟି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କହିବେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ଏକ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେହି ଦିନ ଥିଲା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦିନ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଏକ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକକୁ ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 29 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ଏ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ମେଷ ଶାବକର ବଳିଦାନ ହେବାର କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏକ ମେଷ ଶାବକ ଭାବରେ ସେ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଡର କରିନାହିଁ ବା ଯୀଶୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସାସିନେସନ ହେଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ, ମୃତ୍ୟୁର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେତେବେଳେ
बाइबल लिखा जाए जे पिलातो लोकमान को कहले कहीं यार विरुद्ध रे जाउछ ई तो कौन प्राणदंडर योग्य कारण नहीं या मध्य किंतु लोक माने चित्कार कले आ कहले नाई या को क्रूसरे चढ़ा जाओ या को क्रूसरे चढ़ा आ बाइबल रे लिखा जाए पिलातो हस्त प्रक्षालन कले आ कहले यार रक्तर मु दायी नुह तेबे यीशु को से दिन क्रूस ऊपर को नियागला किंतु क्रूस को जीवा पूर्वर एक प्रोसेस मध्य दे जीवा पाई पड़े क्रूस को जीवा पूर्वर जड़े अपराधी को जहा को क्रूस्य मृत्यु दंड देवार स्वीकृति हुए से व्यक्ति को प्रथमे कोरोड़ा प्रहार करा जाए एवं से कोरोड़ा प्रहार यीशु को मध्य करागला 39 प्रहार यीशुंकर शरीर रे से कोरोना प्रहार कला और जो कोरोना व्यवहार करा जाए से कोरोनार अग्र भागरे मुनिया धातु हाड़ लुहा काच ए प्रकार मुनिया धातु संयुक्त करा जाए और जिते बड़े जड़े सिपाही ए कोरोना प्रहार करे सेते बड़े से मुनिया धातु अपराधीर शरीर मध्य प्रवेश करे और जिते बड़े ताकू टणा जाए मांस पुला पुला बाहरी आसे और यीशुंकर शरीर पर से प्रकार 39 प्रहार दिगला आ यीशुंकर शरीर रे कौन सी मांस नथिला जहाँ आमे जिसाय पुस्तक तार 53 अध्याय आमे देखू जे भविष्य वक्ता जिसाय अनेक वर्ष पूर्वर यीशुंकर से निर्यातनार दृश्य को से दर्शन देखी से स्थान उपस्थापन करे ए 7टी बाणी सुनिबा पूर्वर आमको जानिबा पई पड़िबो जे यीशु जेतेबेले क्रूस ऊपर अछंती ता पूर्वर क्रूस ऊपर को जीवा पूर्वर तांकर शरीर रे आ कोनोसी से प्रकार सौंदर्यता नहीं तांकर शरीरर मांस पुला पुला बाहरी साइसी तांकर शरीरर रक्त स्राव संपूर्ण भाव में निगिड़ी सारी मस्तक कंटार मुकुट वेदना निजे निजर क्रूस नहीं कि से गलगथा ऊपर को जाऊँच ए प्रकार एक परिस्थिति मध्य यीशुंकर शरीर समस्त रक्त निगाड़ी सारी अच्छी वर्तमान बाइबल रे लिखा जाए जे यीशु को दिन 9टा समय क्रूस ऊपर को नियागला आउ तांको क्रूसार्पित करागला आ जते बेले यीशु को क्रूस ऊपर रखा जाई अछि सकाळ 9 घंटा समय दिन संध्या 6 घंटा समय पर्यंत यीशु क्रूस ऊपर वेदना कष्ट ताड़ना दुख अपमान एवं समस्त प्रकार कष्ट को सह्य करी से क्रूस ऊपर झुलुअछन एवं ए प्रकार अवस्था मध्य सकाळ 9 घंटा समय संध्या 6 घंटा पर्यंत यीशु क्रूस ऊपर बिना खाद्य रे बिना पेय रे कष्ट माड़ जंत्रणा समस्त सह्य करी क्रूस ऊपर अछंते एवं ए प्रकार अवस्था मध्य आमे यीशुंकर मुखरु 7टी बाणी शुणी थाउ जो 4टी सुसमाचार लेखक बाइबल रे आमे पाऊ से समस्ते ए 4टी बाणी को उपस्थापन करू नाहंती किए तो गोटिए किए तो 2टी आ किए तो 3टी 4टी ए प्रकार उपस्थापन करूछंती यार अर्थ बा यार कारण कौन आमे जाने आमे निश्चित जानिबा जे ए लेखक मानकर अभिप्राय एवं लेखक मानकर उद्देश्य अनुसार से माने यहाँ को लिपिबद्ध करी अछंती वर्तमान आसु आमे प्रथम बाणी को जिबा प्रथम बाणी जेतेबेले यीशु क्रूस ऊपर कहउछंती लूक तार 23:34 पद रे उल्लेख करा जाए ए प्रथम बाणी रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए प्रकार भाव रे
ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ପିତାଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉଥିଲେ, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବେଦନାର ସହିତ, କଷ୍ଟର ସହିତ, ଦୁଃଖର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପିତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏ ପିତା ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଜଗତରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ବସ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଯାଅ ଆଜିଠାରୁ ପାପ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ଇଏ ତ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି, ପାପ କିଏ କ୍ଷମା କରିପାରେ? ପାପ ତ କେବଳ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ এই ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି, ଇଏ ତ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ବାଣୀରେ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ପିତା ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ 100% ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ପିତା ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ମତେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଧିକାର ତୁମେ ଦେଇଅଛ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ସମାନ। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ। ମୁଁ ଯାହା କ୍ଷମା କରେ ପିତା ତାହା କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ପିତା ଯାହା କ୍ଷମା କରନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କ୍ଷମା କରେ। এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କର ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏକ କ୍ଲୋଜ ରିଲେସନରେ, ବଣ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆମେ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାନବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତିନି ଈଶ୍ୱର ବା ତ୍ରିବିଧ ଈଶ୍ୱର, ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ତିନୋଟି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ এই 7ଟି କଥନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପିତାଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କୁ এই କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ତୁମେ କ୍ଷମା କର, এই ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଅଛି। ଲୋକମାନେ ବିନାଶର ଯୋଗ୍ୟ, ମାତ୍ର କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ କ୍ଷମାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଅଛନ୍ତି। এই କ୍ଷମା ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇକି, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ଯାହା ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲିକି এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ এই କ୍ଷମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କ୍ଷମାର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କ୍ଷମାରେ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁ କେବଳ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପିତା କେବଳ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, এই ତିନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତ୍ରିବିଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରେ। ଅତଏବ এই ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀକୁ ଆସୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଲୁକ ତାର 23 ପର୍ବ 43 ପଦରେ,
আজি ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହିତ ପାର ଦିଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଚୋର, ଜଣେ ଡାହାଣରେ ଆଉ ଜଣେ ବାମରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପମାନ କରୁଅଛି। ସେ କହୁଅଛି ତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାହେଲେ ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କର। ଲୋକମାନେ ଟାହି ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା, ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲେଇ ଆ, ତୁ ଯଦି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ଏଇ ଚୋର ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୋର ଯେ କି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ସେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହିତ ପାରଦିଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏଇ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ କିଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାରଦିଶକୁ ନେଇପାରିବେ। ଯୀଶୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯୀଶୁ 100% ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଆଉ 100% ମଣିଷ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ 100% ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ସକାଶେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦିଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଅଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାପରୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ନେଇପାରିବେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବନକୁ ନେଇପାରିବେ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ନିକଟକୁ ନେଇପାରିବେ, ବିନାଶ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଅଛି ଏବଂ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ, ସେଇ ଅଧିକାରକୁ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଘଟି ସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କର ଶରୀର କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସାରିଲାଣି, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ, ଶରୀରରେ ମାଂସ ନାହିଁ, ପୁଳା ପୁଳା ମାଂସ ବାହାରି ପଡିଛି, ରକ୍ତ ଝରଝର ନିଗିଡି ଚାଲୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରଦିଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି କଲସିୟ ତାର 1:13 ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏହା କହୁଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଧିକାର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବାର ଅଧିକାର, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାର ଅଧିକାରକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ନେଉଅଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଆତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। এই ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଅଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ନାଶ ହେବ, ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ମରିଯିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ତାର କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲିକି ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ। ଇମିଡିଏଟ ସେଇ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଗଲା। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସତ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଚୋର ପରି ଗଣାଗଲେ ସତ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କ୍ରୁଶରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲା। ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ପାପର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୈତାନର ରାଜତ୍ୱର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଯେପରି କହେ, ଏଇ ଜଗତର
आकाश मंडल अधिकारी आज्ञा लंघन करुवा लोक माने जेपरी शैतान रो बसरे रहंती से प्रकार आज अनेक लोक शैतान रो से बंधन मध्य अछंती किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट से ट्रांसफॉर्मेशन करि सारी अछंती आम मानकु अंधकार क्षमतार आलोक मध्य को स्थानांतरित करि आछंती कारण तांको मध्यरे से योग्यता रही अछि। प्रथम करंथियो तार 2 पर्व 9 पदरे मध्य लिखा जाए से आम मानकु अंधकारु तांकर आश्चर्य रूप ज्योति मध्य को स्थानांतरित करि अछंती जेपरि आमे माने तांकर गुण कीर्तन करिबा। प्रिय बंधुगण क्रूस उपरे यीशु जो द्वितीय वाणी कहिले से द्वितीय वाणी द्वारा मु एवं आपण माने अंधकारु ईश्वरंकर ज्योति मध्य को स्थानांतरित हेइ अछु। आत्मिक जगतरे आज पर्यंत जदि कौनसी व्यक्ति ख्रिस्टियन हेकी विश्वासी हेकी मंडलीभुक्त हेकी आज पर्यंत जदि पापर अधीन रे अछि व्यवस्थार अधीन रे अछि गुलाम रो अधीन रे अछि अंधकार रो अधीन रे अछि पापर अधीन रे अछि ख्रिस्टियन होइकी विश्वासी होइकी भी पापर दासत्व मध्य जीवन काटु अछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट एई वर्षर एई गुड फ्राइडे समय तांकर द्वितीय वाणी आपण को से कथा कहया पई चाहंती जे जदि तुमे मते विश्वास कर जदि तुमे मोर ऊपर निर्भर कर जदि मोर रक्त रे तुमे विश्वास कर जदि तो मोर प्रायश्चित रे तुमे विश्वास कर ताहेले आज तुमे मो सहित पारदीश रे उपस्थित हेबो। आज तुम जीवन रे एक ट्रांसफॉर्मेशन एक परिवर्तन हेबो। मते एवं आपण को प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ऊपर विश्वास करिवार अछि तेबे जाई आम मानकर जीवन रे एक ट्रांसफॉर्मेशन एक स्थानांतरीकरण एक परिवर्तन एक शिफ्ट एक चेंज एक पार्थक्य एक परिवर्तन आम जीवन रे देखा आ यीशु आपण को आ मते कहया पई चाहते आमे जितेबेले तृतीय वाणी आसु सेतेबेले आमे देखो यीशु क्रूस उपरे कष्ट एवं वेदना मध्यरे तांकर निजर माता को देखुछ आ सेतेबेले से कहउछंती तांकर तृतीय वाणी रे गो नारी देख तुम्भर पुत्र जोहन तार 19 पर्व 26 पदरे लिखा जाए गो नारी देख तुम्भर पुत्र यीशु अपना माता को गो नारी एक रेस्पेक्टेबल एक संबोधन यहूदी मानक निमंते कौन एक महिला को गो नारी बाबद जितेबले संबोधन करा जाए एक रेस्पेक्ट आ यीशु या पूर्व आउ थे निजर माता को गो नारी भाव में संबोधन करते जितेबले काना नगर विवाह रे यीशु एवं तांकर माता थिले से स्थान रे यीशुंकर माता जितेबले तांको पाखक आसुअछंती आ कहउछंती तांकर दाक्षरस सरीगलानी यीशु कहउछंती गो नारी ए स्थान रे एक कंफर्ट ए स्थान रे एक सांत्वना ए स्थान रे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को आमे देखुअछु यीशु जितेबले आपण माता को क्रूस ऊपर अनाईकी वेदनार एक चाहणी रे दुखर रुद्ध कंठरे एवं अश्रु झड़ा रक्त झरा शरीर वेदनार कष्ट पाउथियो अवस्था रे तांकर माता को देखुचंती सेतेबेले एक कंफर्टिंग वर्ड बाय कहउचंती गो नारी देख तुम्भर पुत्र जो पुत्र को तुम्हें जन्म देइथिलो जो पुत्र को तुम्हें प्रसव देइथिलो आज से पुत्र क्रूस उपरे किंतु मने रख मु तुम मान को अनाथ करी चली जीवी नाही यीशु तांकर मृत्यु पूर्व से कहले जे मु तुमको अनाथ छाड़ी जीवी नाही तुम मान को संगरे रहिबा पाए एक शांति शांतिमय पवित्र आत्मा को प्रेरण करिबी जे तुम सहित रहिबे वास करिबे कंफर्टिंग होली स्पिरिट मु जाउछि अल्प समय पर मो ए संसार छाड़ी चली जीवी
कारण यह पितांकर उद्देश्य मु मृत्युवरण करी मोर शरीर लहू रक्त झरी सारे मोर शरीर कौन बंचार कौन रास्ता देखा जाऊ नहीं मोर कंठ धीरे धीरे रुद्ध हो सारे मु जाऊची किंतु गो नारी तुमको संभालिया पाए एक कंफर्टिंग पवित्र आत्मा अच्छा मु गला परे मु से पवित्र आत्मा को प्रेरण करी जीशु आगु कही सारी अछंती तेबे क्रूस ऊपर एक प्रथम तीनोटी बाणी रे आमे पिता को देखुछु जीशु को देखुछु एवं पवित्र आत्मांकर से कंफर्टिंग वर्ड को मध्य देखुछु जीशु अपना माता को से एक कंफर्टिंग वर्ड दउछंती एक सांत्वनादायक वर्ड दउछंती जे मु चली जीवी निश्चय किंतु तुमर जत्न नेबा पाई लोक निश्चय अछंती आ परे से कहउछंती देख तुमर माता यह एक ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी जीशु जाउछंती किंतु तांकर दायित्व पुत्र भावरे मातार दायित्व जहाँ से तुलैबा कथा से तुलै पारु नाहंती आ तांकर आउ समय मध्य नाही से दायित्व को तुलैया पाए किंतु सेति पाए से दायित्व को से स्थानांतरित करूछंती जेपरि से कहिले मु गला परे पवित्र आत्मा तुमर सहवर्ती हेबे एई स्थान रे से कहउछंती मु गला परे तुमर एई शिष्य बा तुमर एई पुत्र तुमर तत्त्वावधान करिबी कंफर्टिंग होली स्पिरिट तीनोटी बाणी रे आमे पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मांकर उपस्थिति आमे देखुछु कारण मनुष्य जगर परित्राण निमंते प्रायश्चित निमंते केवल जीशु एकाकी रेस्पॉन्सिबल नुहंते पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा ये तीन जन आमर उद्धार कार्य आमर परित्राणर कार्य आमर प्रायश्चित कार्य ये तीन त्रिविध परमेश्वर से निश्चित भाव से योगदान रही अछि तेबे सही समय ठारो आमे देखु जे जीशु अपना माता को सही रेस्पॉन्सिबिलिटी को दायित्व को बहन करुथिबा अवस्था रे से कहउछंती तुम सांत्वना पाओ तुमर दायित्व नेबा पाई नियुक्त कर सारी अछि आ एई तीनोटी बाणी रे आमे पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा उपस्थिति को देखु प्रिय बंधुगण आमे जेतेबेले गोटी गोटी करी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कथित ए सातोटी बाणी को आमे अध्ययन करू ता गोटी लाइन रे ताहा आमको से क्रूस निकटरू तांकर परित्राणर कार्यर समाप्ति निकट को नहीं जाए आ एई क्रूस ऊपर 6 घंटा समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर परित्राणर कार्य को समाप्त करूछंती जेतेबेले आमे चतुर्थ बाणी को जाओ सेतेबेले आमे देखू जे बाइबल रे लिखा जाए दिन 12 घंटा समय रु 3 घंटा पर्यंत देश झाक अंधकार घटीगला देश झाक अंधकार घटीगला कहीं अंधकार है कौन पाई अंधकार है आ चतुर्थ बाणी कहवा समय जीशु केवल कष्ट नथिले केवल रक्तहीनता शरीर क्रूस उपर झुलुता अवस्था नथिले मात्र अंधकार मध्य थिले जेतेबेले एई अंधकार दिन मध्य 3 घंटा मध्य पर्यंत अंधकार राजत्व कला सेतेबेले आमे देखू जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट केवल शरीर रे क्रूस रे झुलु अछंती मात्र आत्मिक जगत रे अंधकार राजत्व मध्य प्रवेश करी शैतान सहित एक आत्मिक युद्ध मध्य अछंती कारण क्रूस उपरे जेतेबेले जीशु जगतर समस्त लोक मानकर पापर बोझ को नहीं क्रूस उपरे झुलु अछंती से एक दुर्दांत पापी
एक दुर्दांत पापी परि देखा जाउछंती कारण जगतर समस्त लोक मानकर पाप को से बोझे की क्रूस पर अछंती बाइबल रे अनेक पापर लिस्ट लिखा जाए एवं से समस्त पाप विषय आमे निश्चित भाव में जानू जे बाइबल कहा कहा को पापर आख्या देई अछि असंख्य पाप विषय बाइबल रे लिखा जाए व्यवस्था हमको पापर ज्ञान पापर बोध देला किंतु प्रभुंकर जड़े दास इस समस्त विषय को से लिपिबद्ध करी सातटी कैटेगरी रे ए पाप गुड़ी को से सम्मिलित करी अछंती आ से कहंती 7 डेडली सिन किंतु जीसु इस समस्त डेडली सिन सातटी प्रकार डेडली सिन जहां क्रोध मोह माया गर्व अहंकार लालसा इस समस्त विषय डिफरेंट कैटेगरी लिपिबद्ध ही अछि आ प्रभु यीशु ख्रीस्ट समस्त पाप को नहीं कि क्रूस पर झुलु अछंती आ सेते बेले से एक पापी परि देखा जाउ अछंती यदि यीशु मोर पापर बोझ को नहीं कि गले तार अर्थ मु मध्य क्रूस उपरे तांको सहित मोर पापर रिप्रेजेंटेटिव भाव रे मु मध्य सेठी झुलु अछि आ सेते पाई प्रेरित पाउल कहंती गालातियो तार 2 पर्व 20 पदरे जे मु आ जीवित नुह मु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूस रे हत होई अछि यीशु क्रूस पर झुलुथिबा समय मु जन्म हेई नथिली कारण यह 2000 वर्ष पूर्वर कथा किंतु मो आत्मिक जगत रे जेतले एक आत्मिक मनुष्य भाव रे मु विश्वास करे एवं मु सही स्थान रे छिड़ा हुए सेते बळे मु जाने जे मु मध्य यीशुଙ୍କ सहित आत्मिक जगत रे आत्मिक भाव रे जदि बा मोर जन्म शारीरिक भाव रे हेई नथिला किंतु मु क्रूस उपरे तांको सहित मृत्यु वर्ण करी अछि मु आ जीवित नुह मोर समस्त पाप को नहीं से क्रूस उपरे से झुलुथिले आ से प्रकार अवस्था रे पिता ईश्वर यीशु को किछि समय पाए परित्याग कले कारण से एक पापी बोली देखा जाउथे ईश्वर पाप को घृणा करंती किंतु पापी को प्रेम करंती आ से प्रकार एक अवस्था रे यीशु क्रूस उपरे अपना चतुर्थ बाणी कहि कि चित्कार कले हे एली एली लामा समक्तानी अर्थात हे मोहर ईश्वर तुम्हें कहीं मते परित्याग कल चतुर्थ बाणी रे यीशु पिता को पिता बोली संबोधन करूना चतुर्थ बाणी रे यीशु पिता को ईश्वर बोली संबोधन करुछन यार अर्थ जे यीशु एवं ईश्वरंक बा पितांक मध्य जो पिता पुत्रर संबंध थिला संपर्क थिला ताहा ए पाप सकाशे छिन्न हो जाइछि ए पाप सकाशे विच्छेद हो जाइछि एवं पिता ईश्वर किछि समय पाई अपना पुत्रंक ठारू अपना मुख को से फेरे अछंती कारण क्रूस उपरे यीशु पिता को अनुरोध करुछंती क्रूस उपर को जीवा पूर्वर मध्य यीशु पिता निकट रे अनुरोध कले हे पिता यदि आपनकर इच्छा हुए ताहले एई पान पात्र मो ठारू दूर कर मात्र मोर इच्छा नहीं तुमर इच्छा तुम्हें सफल यीशु क्रूस उपर को जीवा पूर्वर से चाहूथिले जदि ए प्रकार अवस्था रे जदि प्रायश्चित न होता मृत्यु मध्य मत जावाक न पड़ता कौन से प्रकार एवॉइड करी होता किंतु यह पितांकर इच्छा थिला जिते बड़े से परित्यक्त होचंती ईश्वरंक द्वारा रिजेक्टेड ही जाउचंती परित्यक्त होचंती अंधकार मध्य को यीशु एक स्पिरिचुअल वार निमंते ठेली जा जाई अछि एवं से अंधकार मध्य रे आबद्ध ही अछंती तांकर चतुष्पार्श्व रे कोनोसी आलोक नाही
आत्मिक अंधकार मध्य जीशु शैतान सेना सहित युद्ध करुछंती से आपण जीवन को स्मरण करुछंती से ज्योति भाव रे जगत को आसिले से निजे ज्योति थिले से ज्योति भाव रे जगत को आसिले तांकर जन्म समय लिखा जाए जे जो माने अंधकार रे एवं तिमिराच्छन्न मध्य अछंती से माने आलोक देखिबे से माने सेमानंक ठारे ज्योति उदय हेई अछि किंतु वर्तमान से ज्योति रूप परमेश्वर से अंधकार मध्य प्रवेश करुछंती एवं से पितांक निकटरे ईश्वरंक निकटरे गुहारी करुछंती हे ईश्वर काहे कि मते परित्याग कल मनुष्यर परित्राण निमंते पिता ईश्वर आपण पुत्र को परित्याग करे एवं से अंधकार मध्य 3 घंटार अंधकार मध्य एक युद्ध एक स्पिरिचुअल वारफेयर शैतान रो सेना एवं जीशुंकर सेना मध्य एक युद्ध चालू अछि एवं से युद्ध मध्य से अंधकार मध्य जीशु तांकर परवर्ती तांकर बाणी मान को कही अछंते चतुर्थ बाणी रे परित्यक्त जीशु क्रूस पर झुलु अछंते लोके भाबिले एलियो को डाकुची किंतु जीशु पिता ईश्वर ठारे प्रार्थना करुथिले जे हे पिता काहे कि तुमे मते परित्याग कल प्रिय बंधुगण से पितांक ठारू परित्यक्त हेले जेपरी मु एवं आपण माने पितांक ठारे गृहीत हेबा से पितांक ठारे अभिशप्त हेले कारण बाइबल रे लिखा जाए जे क्रूस रे टंगा जाए से वृक्ष रे टंगा जाए से अभिशप्त हेले जेपरी मु एवं आपण माने आशीर्वाद पाइबा से अंधकार को ठेली दिया गले जेपरी आमे माने आलोक पाइबा से पितांक द्वारा रिजेक्टेड हेले अपमानित हेले तुच्छीकृत हेले घृण्य जग हेले जेपरी आमे माने सम्मान पाइबा आमे माने अधिकार पाइबा आमे माने पुत्रत्वर अधिकार पाइबा एवं तांकर संतान हेबा निमंते आमे तांकर निकट को आसीबा अब्बा पिता बोली संबोधन करि पारिबा प्रेरित पाउल मध्य ताहा कहंती तांकर रक्त द्वारा आमे माने तांकर निकटवर्ती हेई अछु तांकर शरीर द्वारा आमे मानकर विरुद्ध रे थिबा समस्त विधि विधान से चली जाई अछि तांकर क्रूस द्वारा आमे तांकर सहित थिबा शत्रुता को आमे खंडन करि पारि अछु कारण से क्रूस उपरे से अपना जीवन को समर्पण करे ए प्रकार अवस्था मध्य अंधकार मध्य जीशु अपना पंचम बाणी को कहउछंती सेठारे लिखा जाए से कहउछंती मते तृषा लागू अछि जोहन तार 19 पर्व 28 पद रे लिखा जाए यह स्वाभाविक जड़े व्यक्ति जितेबले सकाळो 9 घंटा समय से क्रूस उपरे अछि आ ता शरीर रु समस्त रक्त निगाड़ी सारी अछि ता शरीर रु झाल बाहरु अछि ता शरीर रु रक्त बाहरु अछि ता शरीर समस्त रक्त टोपा टोपा रक्त निगिड़ी सारी अछि से क्षुधा और तृषा रे क्रूस पर अछंती से प्रकार अवस्था रे जने व्यक्ति को तृषा लागिबा स्वाभाविक कारण तांको शरीर रे आ कौन से प्रकार रक्त नथिला विज्ञान कहे जने मनुष्यर शरीर रे 6 लिटर रक्त संचित रही था एवं जीशु जितेबले क्रूस उपरे अछंती तांको शरीरर समस्त रक्त निगाड़ी सारी अछि वर्तमान से तृषित जो जीशु लोक मानकर तृषा मेंटाउथिले से आज तृषित जे लोक मान को आह्वान कले जदि तुमे तृषित ताले मो निकट को आस मु तुम मान को जीवंत जल देवी आ तुम मानकर हृदय तुम मान को अंतकरण रु जीवंत जल निर्गत हेबो से जीशु आज तृषित मते एवं आपण मान को जीवंत जल देबा पाई
से तृषित हेले मते आपण मानंकु आमर हृदय मध्यरु आत्मिक जल अर्थात पवित्र आत्मा रूप जल जेपरी उद्गार हेबो प्रवाहित हेबो से निमंते से क्रूस उपरे तृषित हेले लोक माने तांकर तृषा निवारण करिया पाए अम्ल रस तांकु जाचिले किंतु से पीले नाही तांकर तृषा को अम्ल रस निवारण करि परिबो नाही जीशुंकर तृषा को अम्ल रस निवारण करि परिबो नाही जीशुंकर तृषा को केवल हजा आत्मा जीशुंकर तृषा को केवल पापी आत्मा अंधकार रे थिबा आत्मा पापर दासत्व रे थिबा आत्मा पापर दहला कादुरे बुड़ी विनाश मध्यरे थिबा आत्मा को संखलिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर तृषा आ से तृषा को से आत्मिक जगत रे से अंधकार मध्यरे थिबा समय से तृषा को निवारण करूछंती क्रूस उपरे कौन सी अम्ल रस जीशुंकर तृषा को निवारण करि पारिला नाही जीशु तृषित हेले मते जीवन रो जल देबा पाए जीशु तृषित हेले जेपरी मोर उदररु मोर हृदय मध्यरु आत्मिक जल से उछली उठिबो जेपरी मु आ केबे तृषित हेबि नाही से दिन जीशु जेते बेले कहिले तुमे जदि मते जानि थांतो ताहेले मते जल मागी थांतो आ मु तुमको ए प्रकार जल देई दे थांती जे तुमको आ केबे तृष लगी न थांता से स्त्री कहला प्रभु ताहले मते सेई जल दियंतु आ मु ए कुओ को केबे आ आसीबा पई पड़िबो नाही जीशु आत्मिक जल विषय कहउतिले जीशु आत्मिक तृषा विषय कहउतिले आज आपण आत्मिक भावरे तृषित कि आपण होइते पारे ख्रिस्टियन अनेक वर्षर ख्रिस्टियन हेई पारंती मात्र आज पर्यंत आपणकर तृषा जदि से पवित्र आत्मा रूप जल द्वारा निवारण हेई पारि नाही आपण तथापि तृषित ताहले तांको निकट को आसंतु से तृषित हेले आपणको संपूर्ण भावरे तृषारो निवारण करिया पाए एवं से आपणकर तृषा को निवारण करि पारिबे तांको निकट को आसंतु से जीवनर जल देई पारंती से आपणकर जीवनर समस्त तृषा को निवारण करि पारिबे आपनको क्षमा देई पारिबे आपनको उन्नत करि पारिबे आपनको स्थानांतरित करि पारिबे आपणकर जीवनर शांति आनंद देई पारिबे आपनको अंधकार मध्यरो आलोक मध्य को स्थानांतरित करि पारिबे से कहले मते तृषा लागुछि मो तृषित अर्थात मु जल चाहे मु जल मु मो ए तृषा निवारण करिया पई चाहे जीशुंकर तृषा जदि आपण निवारण करिया पई चाहंती तांकर तृषा को निवारण करिया पाए केवल आत्मा गण जणा जाई पारे विश्वासी भावरे जदि आमे आत्मा गण जणी पारिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर तृषा को निवारण करि पारिबा विश्वासी भावरे हजात्मा मानकु जदि आमे ख्रीष्टंक निकट को आनी पारिबा ताहले ख्रीष्टंकर क्रूस उपरे झुलुथिबा अवस्था रे जो तृषा विषय से वर्णना करे साहको आमे निवारण करि पारिबा कारण ख्रीष्ट तृषा एक आत्मिक तृषा ए प्रकार अवस्था रे जीशु जेते बेले क्रूस उपरे अछंती से तांकर षष्ठ वाणी को से उपस्थापन करूछंती षष्ठ वाणी रे से लिखा जाय सेतिरे जीशु सेई अम्ल रस पान करी कहिले समाप्त हैला जोहन तार 19 पर्व 30 पद कौन समाप्त हैला को विषय समाप्त हैला क्रूस उपरे जेते बेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट अंधकार मध्यरे अछंती प्रेरित पाउल कलसीय मंडली को लिखिबा समय तार 2 पर्व तार 14 एवं 15 पदरे से लिखंती जे जीशु जेते बेले क्रूस उपरे अछंती वेदनाग्रस्त भावरे रक्त झरुथिबा अवस्था रे तांकर शरीरर मांस पुला पुला बाहरी जाउथिबा अवस्था रे कंटार मुकुट
ତାଙ୍କର ମଥାରେ କଣ୍ଟା ପ୍ରଭେଦ କରିଅଛି, ରକ୍ତ ସ୍ରାବ ନିଗାଡୁଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ସେଇ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସୈନ୍ୟ ବା ଦୂତ ଏବଂ ଶୈତାନର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଅଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ନିଗିଡି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଲଜ୍ଜିତ ହଉଛି, ଶୈତାନ ପରାଜିତ ହୁଅଛି ଏବଂ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଛଡାଇକି ଶୈତାନକୁ ପ୍ରକାଶରେ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପୁଡା ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଗାଲରେ ପଡିଲା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦା ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଝରିଲା, ତାହା ଶୈତାନର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ମରାଗଲା। ଶୈତାନର ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ କାଢି ନିଆଗଲା, ଶୈତାନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିହୀନ କରି ଦିଆଗଲା, ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଛଡେଇ ନେଇକି ତାକୁ ପରାଜିତ କରି ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରା ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରାଗଲା। ଏବଂ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଧି ବିଧାନ, ସମସ୍ତ ଏଲିଗେସନ ଯାହା ଶୈତାନ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଣୁଥିଲା। କଣ ସେ ଏଲିଗେସନ? ଶୈତାନ କହୁଥିଲା ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, এই ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରିଛି, ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ଅଛି। এই ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଗୁଲାମରେ ଅଛି, এই ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ବସରେ ଅଛି, এই ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁଲାମର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି এই ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାନ୍ସମ ପ୍ରାଇସ୍ ଅର୍ଥାତ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଦେଲେ ଆଉ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଛଡେଇକି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଏକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କଲେ। କଣ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା? ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ହେଲେ, ଯୀଶୁ ବିଜୟୀ ହେଲେ, ଶୈତାନ ପରାଜିତ ହେଲା। এই ବିଷୟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛନ୍ତି। ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ରାଜାର ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଜଣେ ରାଜା ବିଜୟୀ ହୁଏ, ଜଣେ ରାଜା ପରାଜୟ ହୁଏ। ବିଜୟୀ ରାଜା ରଥରେ ଚଢିକି ରଥ ଉପରେ ବସେ, ସିଂହାସନରେ ବସେ ଏବଂ ତାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ତାର ପ୍ରଜାଗଣ ରଥର ଚାରିପାଖରେ ଆଗରେ ପଛରେ ସେମାନେ ପ୍ରସେସନ କରିକି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିକି ଚାଲନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଧୂପ ଜଳାନ୍ତି। ବିଜୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସୁଗନ୍ଧିର ଧୂପ ଏବଂ ପରାଜିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ମୃତ୍ୟୁର ଧୂପ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 2:14 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା? এই ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବିଜୟ, ଅନ୍ଧକାର ରାଜତ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ, ଅସତ୍ୟତା ଉପରେ ବିଜୟ, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ, ଅରାଜକତା ଉପରେ ବିଜୟ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଏବଂ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ଥିଲି। ଯୀଶୁ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଛଡାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ଥିଲି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛନ୍ତି କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକରେ ତାର 3 ପର୍ବରେ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମରିଅଛ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି। ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଅଛନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପୁନର୍ବାର କହନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଉତ୍ଥିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଚସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଉତ୍ଥିତ ହେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ମନୋଯୋଗ କର। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ
से वार रूम रु एक संदेश आसिला जे यीशु विजयी हेले, अंधकार राजत्व पर विजयी हेले, शैतान रो अस्त्र शस्त्र को छड़े नहीं ताकू प्रकाश रे ताच्छल्य कले, अपमानित कले, ताकू संपूर्ण भाव पराजित कले। एवं जेपरी मु कहली रोमियो राजा जितेबाला विजयी हुंती पराजित राजा को रथर पछुआड़े दौड़ी रे बांधती आ से पराजित राजा को रास्ता रे घोषाड़ी घोषाड़ी नियंती। यीशु मध्य क्रूस उपरे शैतान को पराजित करी प्रकाश रे एक विजय यात्रा घोषणा कले। एवं जेतेबेले ए समस्त विजयर विषय समाप्त होईची सेतेबेले यीशु क्रूस परे कहउचंते समाप्त हैला। कौन समाप्त हैला? विजय कार्य समाप्त है। पाप उपरे विजय समाप्त हैला, अंधकार उपरे विजय कार्य समाप्त हैला। जो कार्य निमंते पिता मते जगत को प्रेरण कले से कर्तव्य समाप्त हैला। जोहन लिखित सुसमाचार रे तार 17 पर्व रे मध्य यीशु कहंती प्रभु जो कार्य निमंते तुमे मते जगत को प्रेरण करियछ ताकू मु संपन्न करी तुमर महिमा करूछि। यीशु क्रूस परे से तांकर परित्राणर कार्य को समाप्त कले। प्रथम जोहन तार 2 पर्व लेखा जाए से केवल आम मान निमंते नुह मात्र समस्त जगतर लोक मान निमंते परित्राण एवं प्रायश्चितर कारण हेले। तांकर कार्य को परित्राणर कार्य को प्रायश्चितर कार्य को एटोनमेंट रो कार्य को से क्रूस उपरे समाप्त कले। ए समाप्त कार्य क्रूस पर यीशु ए अंधकार रे थिबा 3 घंटा मध्य कले। चतुर्थ बाणी रे से पितांक द्वारा रिजेक्टेड हेले, तुच्छीकृत हेले, अपमानित हेले, घृणित हेले, पापर से बोझी निमंते से एक पाप घुण्य पापी परि देखा गले आ पिता आ पुत्र मध्य एक विच्छेद हैला। किंतु सप्त बाणी रे समस्त प्रायश्चितर कार्य समाप्त हैला परे से पुनर्बार कॉन्फिडेंसली पितांक निकट रे आसी कहउचंती हे पिता मु मोर आत्मा तुम ठारे समर्पण करूछि। यह एक रेस्टोरेशन रो प्रार्थना। प्रथम बाणी रे से पितांको पिता बोली संबोधन कले, किंतु चतुर्थ बाणी रे पापर असंख्य अगणित पाप निमंते पृथ्वीर महाजनतार पाप निमंते से तुच्छीकृत हेबा सकाशे पितांको पिता बोली संबोधन करि पारिले नाही। से पितांको ईश्वर बोली संबोधन कले आ कहिले मते काहे की परित्याग कल। एवं सप्तम बाणी रे से पुनर्बार अपना कार्य अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना दायित्व एवं अपना प्रायश्चितर कार्य को समाप्त करे कहउचंती हे पिता वर्तमान तुमे मते ग्रहण कर, वर्तमान पुत्रत्वर अधिकार पुनर्बार मते दियो, वर्तमान रेस्टोरेशन पुनर्स्थापना पुनर्बार तुम सहित मोर हेई पारिबो कारण मु मोर कार्य को करी मोर कार्य को मु समाप्त कली। हे पिता तुम हस्तरे मु अपना प्राण समर्पण करूछि, अपना आत्मा समर्पण करूछि। प्रिय बंधुगण यीशु को कौन से व्यक्ति हत्या करी नाही बा मर्डर करी नाही बा असैसिनेशन हेई नांती। से निजे क्रूस उपरे पितांको निजर आत्मा समर्पण करूछंती। आ बाइबल रे लिखा जाए तत्परे से प्राण त्याग कले। मंदिरर विच्छेद वस्त्र 2 भाग हो गला। यीशुंकर मृत्यु द्वारा लोक माने पिता ईश्वरंक निकट रे प्रवेश करिवार एक सुजोग पाइले। यीशुंकर मृत्यु सकाशे लोक माने जो माने दूर रे थिले से माने तांकर निकटवर्ती ही पाले। प्रायश्चितर कार्य समाप्त ही पारिला। घृण्य लोक ईश्वरंक द्वारा गृहीत ही पारिले। दूर रे थिबा लोक माने ख्रीष्टंक निकट को आसिले एवं पिता ईश्वरंक
ठारे गृहीत हेले यीशु कहउचंती हे पिता मोर आत्मा को तुमे ग्रहण कर तुम ठारे मु मोर आत्मा को समर्पण करूछि। प्रभुंकर जने दास एई प्रकार कहंती यीशु को किए क्रूस रे चढ़ेला या पिला तो लोक मानकर भय सकाशे नुह या इस्कारित जिहुदा अर्थ लोभ सकाशे नुह या जिहुदी माने यीशु को ईर्षा करने सकाशे नुह मात्र यह पिता ईश्वर जगत को प्रेम करुथिबारु तांकर प्रेम सकाशे आपना पुत्र को क्रूस पर समर्पण कले से बाइबल लिखा जाए कारण ईश्वर जगत को एमंत प्रेम कले जे से आपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे कि तांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। पिता ईश्वर प्रेम कले पुत्र ईश्वर से प्रेम को क्रूस पर प्रदर्शन कले एवं पवित्र आत्मा ईश्वर से प्रेम को आज प्रत्येक हृदय वितरण करुछंती से रोमियो तार 5 पर्व 5 पदरे लिखा जाए पवित्र आत्मा द्वारा से प्रत्येक हृदय प्रेम परिव्याप्त करुछंती से प्रेम को क्रूस ऊपर प्रदर्शन कले पिता ईश्वर प्रेम कले कारण बाइबल लिखा जाए ईश्वर प्रेम करुथिबारो अपना पुत्र को पठाए यीशु प्रेम को प्रदर्शन कले क्रूस पर एवं से प्रेम को आज पवित्र आत्मा वितरण करुछन आपण ए प्रेम को प्राप्त ही सारी आम वर्ष मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से क्रूसीय जातना को स्मरण करुछु क्रूस उपरे तांकर से 7टी बाणी को आमे स्मरण करुछु से अंधकार मध्य थिबा समय यीशु तांकर परित्राणर कार्य को समाप्त कले एवं 3 घंटा परे पुनर्बार आलोकित हैला कारण बाइबल लिखा जाए केवल 3 घंटा पर्यंत देश जाक अंधकार हो गला एवं यीशु पुनर्बार जेतेबेले पितांक निकट रे आपण आत्मा समर्पण करुछंती पुनर्बार देश जाक आलोक रे विचरित हो गला कारण परित्राणर कार्य समाप्त हैला यीशु अंधकार आलोक मध्य को लोक मान को स्थानांतरित कले जगत रे आलोक जगत रे ज्योति जगत रे ईश्वर ज्योति वितरण कले शेष कथा कही मु समाप्त करने चाहे यीशु ज्योति निवासी तांको विषय जोहन कहती से ज्योति निवासी से ज्योति रे रहंती मोर पाप पई आपन को पाप पई अंधकार को गले किंतु से ज्योति निवासी एवं ताहांको ठारे कौन से अंधकार लेश नाही आ से चाहती जो मानू से अंधकार ज्योति मध्य को स्थानांतरित करी अछंती सेमाने मध्य यीशुंको परि ज्योति रे आचरण करंतु किंतु जोहन कहती जदि आमे माने कहू जे आमर सहभागिता ताहांको सहित अछि से ज्योतिर संतान ईश्वर सहित अछि एवं तथापि आमे अंधकार रे भ्रमण करू ताहेले आमे माने मिथ्यावादी आपण ज्योतिर संतान हेला परे मध्य कोन आज अंधकार रे आचरण करंती आपणकर ईश्वर अंधकार तांकर प्रेम पात्र पुत्रंकर ज्योति को आनी अछंती आसे ज्योति आचरण करंतु तथापि मध्य जदि आपण अंधकार रे अछंती ताहले ख्रीष्टंकर से आलोक निकट को फेरी आसंतु ख्रीष्टंकर से आलोक निकट को फेरी आसंतु एब्री पुस्तकर 6 पर्व रे लेखक कहंती जदि आमे माने सत्य जानी अछु आलोक प्राप्त ही अछु ईश्वरंकर वाक्य ग्रहण करी अछु भावी जुग विषय आस्वादन करी अछु आलोकर संतान ही अछु पवित्र आत्मा को ग्रहण करी अछु आ जदि तथापि आमे माने लक्ष्य भ्रष्ट हेउ धर्म भ्रष्ट हेउ ताहले से प्रकार लोक माननकु पुनर्बार उद्धार करिबा बा परित्राण करिबा बा परिवर्तन करिबार कष्टकर कारण बाइबल लिखा जाए कारण से
जानी बुझी पुनर्बार जीशुଙ୍କୁ बारंबार 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 क्रूसरे चढ़ाते आ से लोक मानकर कौन सी परित्राण ना जितेबले आम ए क्रूसर ए सातोटी बाणी को शुणुअछु मोर प्रिय श्रोतागण आमर जीवन को आम अवलोकन करू आत्म समीक्षा करू निज जीवन को प्रभु ठारे उत्सर्ग करू प्रार्थना करू जदि अंधकार आज आम भ्रमण करुअछु जीशु निकट को फेरी आसु जदि बारंबार प्रभु जीशु ख्रीष्ट को क्रूसरे चढ़ाऊछु मोर कार्य द्वारा मोर कथा द्वारा मोर चालीचलन द्वारा मोर व्यवहार द्वारा ताहले पुनर्बार आम फेरी आसु अनुताप करू खेद क्रंदन करू अश्रु निगाड़ो हृदय विदार भाव प्रभु को कहो प्रभु मते क्षमा करो मु तुमको जाने जाने पुनर्बार क्रूसरे चढ़ाए मु तुमको अपमानित करे मु तुमको तुच्छ करे मु तुमको अस्वीकार करे मते क्षमा कर जितेबले आम इस समस्त विषय को अनुध्यान करुअछु प्रभु आमको एक आत्मिक सचेतनता मध्य नियंतु जेपरी आमर आत्मिक जीवन को आम अवलोकन करवा समीक्षा करवा एवं जदि कौन से त्रुटि आम जीवन अच्छे आम ख्रीष्ट निकट को फेरी आसवा से क्रूस निकट को फेरी आसवा आम जीशुंकर क्षमा को पुनर्बार आम जीवन में ग्रहण करवा प्रभु आम समस्त को ये वाक्य द्वारा ये वाणी द्वारा आशीर्वाद प्रदान करंतु प्रभु प्रत्येक को दाय करंतु आमीन प्रेज द लॉर्ड।